Hi friends, this is Mining Support. Here we will going to discuss about wire drops and attachments and various terms related to normalizing, right hand lay, left hand lay, and other varieties like rope splicing, winding ropes construction, guide rope construction, dragline hoist rope construction, hollis rope, and coal cutting machine wire rope construction, deeper shovel wire rope construction. So stay here and watch it properly. The first things is wire ropes is made of wire rope which is of carbon steel. Carbon steel means contain 0.5 to 0.8% of carbon. Its breaking strength, ultimate tensile strength, or we called its breaking strength should be its breaking strength should be how much? 65 kgf per millimeter square. Now come to the next point here, normalizing. You often get confused about the terms normalizing and annealing. Annealing. Both of the terms have minute difference. Normalizing means when any things heated, any metals get heated and it left for cooling in open atmosphere for increasing its tensile strength and ductility. This process is called normalizing. But if the same phenomena occurs under controlled temperature, if the same phenomena occur under controlled cooling और under कंट्रोल कूलिंग, ठीक है, तो ऐसे चीज़ को हम लोग एनेलिंग कहते हैं. दोनों का पर्पस सेम है. क्या है? इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ एनी वायर रॉप्स. ठीक है. नॉर्मलाइजिंग के केस में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग सीखेंगे क्या. सबसे पहले नॉर्मलाइजिंग जो है, नॉर्मलाइजिंग, दिस इज द सेम फिनोमेनन ऑफ पेटेंटिंग. means we can call it patenting in place of normalizing. In this process rods get heated 1000 degrees Celsius and then allowed to cool in open atmosphere. Okay. The criteria which normalizing fulfills to raise tensile strength, as well as ductility. Now come to the another point, laying of the wires. Lay means direction of laying of wires. Lay means directions of, this is called strands, but this is laying of wires. Lay means direction of laying of wires. This indicates lay. Now we will use the terms right hand lay. Right hand lay. Don't escape this, because after that we will discuss its utilization, main purpose, why do we use this. Right hand lay. Here wire rope round the core. Here wire a spiral round the core. In the same direction. Look here, the direction of wire over the strands are of same directions. This is called right hand lay. Means the direction of strand and direction of wires in the strands
are of same, that's why this will call right hand lay. Such type of constructions are used for haulage as well as winding. Okay, now come to the left hand lay. Similarly, adjacent ropes are of opposite adjacent ropes. Here left hand lay construction, adjacent ropes are of opposite lay. Adjacent ropes are of opposite lay. Laying of the wires are of same direction, but ropes are of getting opposite lay. Okay, in right hand lay, laying of the ropes is in this way, but left hand lay, the direction of laying of ropes in this way, and laying of the wire and strands are of opposite. This is used in copy system of winding, or that this will called drum friction winder. Okay, such type of laying of wire, such type of laying of wire used for the purpose of copy system, or we call it friction winder. Okay, now come to the next point here. Langsley wire rope. Langsley Langsley wire rope construction means wire in the strands in the same direction, wire in the strands in the same direction, just like to right hand lay. Okay, wire in the strands is of same directions, but in in regular lay, but in the case of regular lay, wire in the strands wire in the strands wire in the strands of opposite directions. Such type of laying of wires is used for the purpose in cranes. Okay, regular regular lay wire rope is used for the purpose of crane because there will be no twisting occur. Freely suspended end will be find here, so we use regular lay wire rope here. Okay, now come to the next point, rope splicing. Rope splicing, this is a unique term, you have to listen it properly. Here this indicates that splicing or joining two wire ropes permanently, joining two wire ropes, two broken wire ropes are getting permanently joined together without using a special attachment. Okay, its strands are mixed to the another wire and they are joined together. One question will be asked from that side that rope splicing is a temporary attaching of ropes together or permanently attaching ropes together. So you have to choose about the point permanently. Okay, this is a permanent technique to join two broken ropes or two part of ropes together without using any special attachment, then completing this process. Now come to next point here, winding ropes. Winding ropes constructions are 6 by 7. 6 by 7 indicates 6 by 7 indicates 6 strands. 6 by 7 indicates
sorry. Here 6 by 7 indicates 6 strands, 6 strands, and each strand has 7 wires. You have to identify these terms. 6 by 7 indicates 6 strands and each strand contains 7 wires. This is the meaning of 6 by 7. 6 by 19, this is the same indication of 6 strands and each strand has 17 wires. Okay, now come to the next point here. For winding purposes we will use 6 by 7 types, 6 by 19 types, and 6 by 25, as well as 6 by 27 and also 6 by 30 types of wire ropes, and all have different specifications. This is of Langley fiber core, Langley fiber core. 6 by 19, this is Sealy Langley fiber core. 6 by 19 construction having Sealy 6 by 19 are having Sealy Langley wire rope. But the question will be asked from that side, डीपर सोवेल, डॉजर, क्रेन, ठीक है, तो इस सब में जो होता है वायर रॉक का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए ना, 6 बाय 25 टाइप का होना चाहिए, मतलब 6 स्ट्रैंड होगा, 6 स्ट्रैंड्स होगा और प्रत्येक स्ट्रैंड में 25 क्या होगा, वायर्स होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो वायर ऑफ कंस्ट्रक्शन है किसके लिए यूज़ होगा ना, डीपर सॉवेल के लिए यूज़ होगा, डॉजर के लिए होगा, डीपर सॉवेल के लिए 6 बाय 25 कंस्ट्रक्शन वायर ऑफ डीपर सॉवेल, डीपर सॉवेल, डॉजर, क्रेन्स के लिए हमारा क्या होगा, एक मैन हॉइस्ट ड्रॉप होता है और एक क्या होता है, बूम हॉइस्ट ड्रॉप होता है। दोनों पर्पस के लिए हमारा 6 बाय 25 स्पेसिफिकेशंस का हमारा वायर रॉप यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 6 बाय 25 जो होता है वो किस टाइप का होता है वायर रॉप ना, फीलर वायर लैंग्सले टाइप का, ठीक है, विथ IWRC। 6 बाय 25 का जो वायर होता है वो कैसा होता है ना, फीलर वायर लैंग्सले विथ IWRC कंस्ट्रक्शन का होता है, फीलर वायर लैंग्सले विथ IWRC कंस्ट्रक्शन का होता है। इस हमको ये सब चीज़ को जानकारी रखना है। तो 6 बाय 25 हमारा किस केस में यूज़ होता है ना, डीपर सॉवेल के केस में, डॉजर के केस में, क्रेन के केस में, क्रेन के केस में हमारा मैन हॉइस्ट ड्रॉप, बूम हॉइस्ट ड्रॉप के लिए यूज़ होता है 6 बाय 25 कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीलर वायर लैंग्सले विथ IWRC कंस्ट्रक्शन का वायर है, ठीक है। ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक टर्म्स है IWRC, इसको क्या समझेंगे, IWRC का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट वायर रॉप कोर, ठीक है, इंडिपेंडेंट वायर रॉप कोर, ओके, इंडिपेंडेंट वायर रॉप कोर, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म, इसको एब्रिविएटेड करके लिखा जाता है IWRC, ओके। तो IWRC का मतलब है, फुल फॉर्म होगा इंडिपेंडेंट वायर रॉप कोर,
इसके नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इसमें क्या कि गाइड ड्रॉप जो होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता है। गाइड ड्रॉप का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, हाफ लॉक की फुल लॉक? तो गाइड ड्रॉप का जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा हाफ लॉक, हाफ लॉक क्वाइल कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। फिर ड्रैग लाइन के केस में हमारा क्वेश्चन बन सकता है ड्रैग लाइन होइस्ट ड्रॉप। ड्रैग लाइन होइस्ट ड्रॉप जो होता है वो 32 से 58 mm का डाया का होता है, 32 से 58 डाया का होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन सेम 6/25 फीलर वायर लैंग्सले विथ IWRC कंस्ट्रक्शन का होता है, ठीक है। ये याद रखने के लिए काफ़ी आसान है। ड्रैग लाइन हॉइस्ट ड्रॉप जो है, ड्रैग लाइन का हॉइस्ट ड्रॉप वो 32/58 का होता है, 32/58 का 32 से 58 डाया का होता है, जिसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है ना, 6/25 6/25 मीन्स फीलर वायर लैंसले कंस्ट्रक्शन का होता है, ठीक है। इसका कौन सा ना हॉइस्ट ड्रॉप के केस में है बात ये। लेकिन वही हमारा नेक्स्ट ड्रैग हॉलेज ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, हॉलेज रॉप में हम पहले बता चुके हैं किस किस टाइप का कंस्ट्रक्शन यूज होता है इसमें, 6/7 या तो 6/19 सिले कंस्ट्रक्शन, सिले कंस्ट्रक्शन और लैंग्सले कंस्ट्रक्शन का, लैंग्सले कंस्ट्रक्शन का यूज हो सकता है। लैंग्सले कंस्ट्रक्शन मतलब कि वायर्स इन द स्ट्रैंड्स लेड इन द सेम डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें CCM कोल कटिंग मशीन, जिसका जो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होना, 6/37 या तो 6/31 कंस्ट्रक्शन का होगा। ये रेगुलर ले, ठीक है, रेगुलर ले मतलब वायर इन द स्ट्रैंड्स लेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, रेगुलर ले विथ IWRC कंस्ट्रक्शन का होता है, ठीक है। याद रखने के लिए ये है हॉलेज रॉप का कंस्ट्रक्शन। हॉलेज रॉप ने 6/7 से 6/7 या तो 6/19 सिले कंस्ट्रक्शन का होता है। CCM के लिए हम बता ही चुके हैं, कोल कटिंग मशीन CCM कोल कटिंग मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वायर रॉप का 6/37 से 6/31 कंस्ट्रक्शन का होता है। इसमें जो होता है वो रेगुलर ले होता है विद IWRC। रेगुलर ले मीन्स वायर्स इन द स्ट्रैंड्स, वायर्स इन द स्ट्रैंड्स आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस। इसमें हम लोग फिर डीपर सॉवेल का पढ़ेंगे। डीपर सॉवेल में क्या है, डीपर सॉवेल, डीपर सॉवेल ड्रॉप, डीपर सॉवेल ड्रॉप में हमारा दो टाइप का होता है, एक हॉइस्ट ड्रॉप होता है और एक होता है क्राउडिंग या रिट्रीटिंग के लिए, क्राउडिंग या रिट्रीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। हॉइस्ट ड्रॉप का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, 32 mm या उससे कम होता है, तो उसका कंस्ट्रक्शन 6/25 का होगा। वायर ऑफ कंस्ट्रक्शन 6/25 मतलब 32 mm या 32 mm से कम का होता है हॉइस्ट ड्रॉप। तो वो किस तरह से होगा ना कंस्ट्रक्शन उसका, फीलर वायर लैंग्सले विथ IWRC मतलब कि इंडिपेंडेंट वायर रॉक कोर, फिलर वायर लैंग्सले विथ इंडिपेंडेंट वायर रॉक कोर कंस्ट्रक्शन होगा किसका ना, हॉइस्ट ड्रॉप फॉर डीपर सॉवेल जो 32 mm या उससे कम डाया का हो। सेम इसी तरह का जो क्राउडिंग या रिट्रीटिंग पर्पस के लिए जो वायर रॉप यूज होता है, ठीक है, तो वो हमारा 58 mm का होता है, 58 mm का होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन वायर रॉप का 6/41, ठीक है, 6/41, 6/41, ठीक है, 6/41। और वायर रॉप का डाया कितना होता है, 58 mm का होता है डीपर सॉविल के केस में, ठीक है। तो इसमें सिले फिलर वायर लैंग्सले विथ IWRC कंस्ट्रक्शन का यूज होता है, इसमें सिले वायर, ठीक है, सिले फिलर वायर लैंग्सले विथ IWRC कंस्ट्रक्शन का यूज होता है, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चंस आपको मतलब पॉइंट्स ध्यान में रखना है तो आपका सवाल बन जाएगा। पहले हम बता चुके हैं कि नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग में ज़्यादा बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजिंग 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 और एनीलिंग
दोनों में यही डिफरेंस है कि हम जब भी कोई वायर रॉड को हिट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस में, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल एटमॉस्फेयर में, मतलब रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं, उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन वही चीज़ हम लोग कंट्रोल टेम्परेचर पे यदि हम उसको ठंडा होने छोड़ दें, ठीक है, कंट्रोल्ड चैम्बर में उसको जब हम ठंडा होने छोड़ें, तो फिर वो हमारा एनिलिंग पर्पस को पूरा करता है। दोनों का एनिलिंग या तो नॉर्मलाइजिंग करने का एक ही पर्पस है, क्या कि टू इन्हांस डक्टिलिटी एंड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना है फॉर बेटर यूज़, ठीक है, बेहतरीन यूज़ के लिए उसको सॉफ्ट बनाना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा वायर ऑफ एन कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग वॉच करेंगे आगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।